Hello students. So today I will teach you the types of chemical reaction. In your first chapter there are 6 types of chemical reactions which are discussed in detail. And I will discuss all of them one by one, as well as I will also set some of the examples for their better understanding. So let us come on the board. I will elaborate every one of them. So the name of the topic is type of chemical reaction, 10th class. Okay, so there are one, two, three, four, and 5 type of chemical reactions mainly. First is combination reaction. Now question arises, what is combination reaction? This is the reaction in which reactant species combines to form the product. They are combining with each other, then product is formed. You can see calcium oxide is here combining with water to form CaOH twice. Quick lime, this is known as quick lime. This quick lime is formed by the combination of reactant. That's why this is a combination reaction. Here carbon and oxygen, they combine to form carbon dioxide, combination reaction. Magnesium and oxygen, they are combining to form magnesium oxide. That's why all of them are combination, because reactants are combined in all of them to form the product. As for your second type of chemical reaction is concerned, that is decomposition reaction. So I suggest you to take it very seriously, because this decomposition reaction is mainly of 3 types, A, B and C. First one is thermal decomposition reaction. What is thermal decomposition reaction? First of all, let us talk about decomposition reaction. Decomposition reaction is the reaction in which reactant decompose into more number of product. There is one reactant only, and this reactant has been decomposed into 3 type of products: lead oxide, nitro and nitrogen dioxide, and oxide. Lead nitrate was a single reactant. What if this decomposition takes place due to the heat? Thermal means heat. If this decomposition takes place due to heat, then this is known as thermal decomposition reaction. And if this decomposition takes place due to electrolysis, means in the presence of electricity. Electrolysis reaction are those reaction which takes place in the presence of electricity. In the presence of electricity, this water dissociates into H2 and O2. So that's why this is known as electrolysis reaction, electrolytic decomposition reaction, because decomposition is there, but this decomposition is due to the presence of current. Now third type is photochemical. Photo means light. So I suggest you guys, photochemical reactions are those reactions which takes place in the presence of sunlight. अगर मैं यहाँ पे HNO लिख रहा हूँ, HNO means sunlight. HNO means sunlight. In +1 class you come to know about this. How? Because there it is being explained that the light comes in the form of packets called quanta HNO. So light is represented by HNO. So when light falls on silver chloride, it dissociates into Ag positive and Cl2 gas. AgBr into this. And also I just want to say about this reaction. This reaction is the reaction of photography. फोटोग्राफी जो की जाती है तो उसमें यही रिएक्शन होता है फोटो क्लिक करने के लिए, और इसी रिएक्शन के थ्रू फोटोग्राफी चलती है. इसलिए एक मार्क्स में वैसे भी आ जाता है कि गिव द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन फोटोग्राफी. दैट इज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. Third type of chemical reaction is displacement reaction. Means displacement. One species displaced the other. Iron gone there to displace copper and took its place. As I explained you in the recent class, that one of the metal is displacing other. So मैंने आपको एक लिख बात का आना मंगल होगा, झनकार फिर सीडी को नहीं सुनेगा, वो एक मेटल रिएक्टिविटी सीरीज दी है. मेटल रिएक्टिविटी सीरीज या फिर मेटल एक्टिविटी सीरीज. उस सीरीज के बेस पे देखा जाएगा कौन सी मेटल ज्यादा रिएक्टिव है. जैसे कि आयरन वाज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट डिस्प्लेस दिस बिकॉज F इज 2 पॉजिटिव, दिस इज 2 पॉजिटिव एंड दिस इज 2 नेगेटिव. 2 नेगेटिव पे उसी का हक होगा जो ज्यादा पॉजिटिव है, और वो देखेगा यहाँ पे उस सीरीज के हिसाब से ये ज्यादा रिएक्टिव था, इसलिए इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया. यहाँ सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव ये है सीरीज के हिसाब से, इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया. दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस. फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. दिस रिएक्शन 2 species. Here you can see SO4 came here and K2SO4 and OH gone there.
with this oxygen. So two species mutually interchanging the position of other. This is double displacement reaction. But I suggest you one thing, guys. Most of the reactions, 90% double displacement reaction are precipitation reaction. Now what are precipitates? These are the insoluble particles which are hanged inside the liquid or which are just produced as a solid inside the liquid. So they are precipitates. Now symbol of precipitate this. If I am saying this is इसका मतलब कि BaSO4 सॉलिड है और वो प्रेसिपिटेट बनके नीचे बैठ गया सॉलिड बनके. दिस सिंबल रिप्रेजेंट पीपीटीज प्रेसिपिटेट्स. तो प्रेसिपिटेशन सब में प्रेसिपिटेट बनते हैं इनसॉल्युबल, इसलिए इनको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं. और मैंने स्पेशल चीज क्या बोली कि ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट 90% प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होते हैं. As far as last type of chemical reaction is concerned, that is oxidation reaction, reduction reaction and redox reaction. ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सा होता है? जिसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो. रिडक्शन कौन सा है? जिसमें गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो. और रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस. किसी रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही एक टाइम में हो जाए तो उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं. तो फिर पता कैसे लगाएंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुई है नहीं? इसके लिए हमें पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन होती क्या है. अगर जैसे इस रिएक्शन को देखें, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? कॉपर ने ऑक्सीजन को यहां पे H2 को दे दिया, कॉपर अकेला हो गया. लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज देयर फॉर कॉपर ऑक्साइड. लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन. इसकी हुई, ये हुई रिड्यूस. और H2 ने ऑक्सीजन को गेन किया और वाटर बन गया. गेन ऑफ ऑक्सीजन मींस ऑक्सीडेशन. H2 का हुआ ऑक्सीडेशन. और अगर इस रिएक्शन में आएंगे तो इस एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों की हो गई. दैट्स व्हाई दिस इज ए रिडॉक्स रिएक्शन. और इस रिएक्शन में अगर निकालना हो तो हाइड्रोजन के केस में दिया है दूसरा हाइड्रोजन. यहां पे सल्फर अकेला हो गया, हाइड्रोजन लॉस की. लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन. क्लोरीन ने हाइड्रोजन गेन करके 2HCl बनाया. गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? रिडक्शन. यहां पे जिंक और Cu2 पॉजिटिव रिएक्ट किए, जिंक 2 पॉजिटिव और कॉपर बना. मतलब जो जिंक है उसने वो जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया. कैसे? बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए उसने. तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीडेशन. तो ये क्या हुई? ऑक्सीडाइज. और Cu2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए. वो Cu2 पॉजिटिव था, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu बन गया. इफ देयर इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज रिडक्शन. गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो मैंने 3 एग्जांपल ली. एक ऑक्सीजन के बेस पे निकाला ऑक्सीडाइज रिड्यूस, एक हाइड्रोजन के बेस पे और एक इलेक्ट्रॉन के बेस पे. और ये 3 ही बेस हैं जिनसे ऑक्सीडाइज और रिड्यूस स्पीसीज का पता चलता है. हाँ, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि इसमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है. याद रखिए, जो ऑक्सीडाइज होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट और जो रिड्यूस होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. बस इतना लगा दीजिएगा आप फिलहाल. बाकी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में हम क्लास में बात कर लेंगे. और ये बात हुई ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में. लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है ऑक्सीडेशन रिएक्शन प्रोसेसेस. ऑक्सीडेशन की 2 प्रोसेसेस मेन है जो आपके सिलेबस में है. रैंसिडिटी एंड कोरिजन. रैंसिडिटी होता है बासी, रैंसिड फूड, बासी खाना. तो कोई खाना बासी कब होता है? जब वो ऑक्सीडाइज हो जाए. जब वो खाना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसका ऑक्साइड बन जाए तो उसको बोलते हैं रैंसिड फूड. और कोरिजन होता है मेटल का रस्ट हो जाना, उसका जंग लग जाना, तो वो भी उसका ऑक्साइड बनता है. जैसे आयरन का एग्जांपल लीजिए. आयरन वाटर के कांटेक्ट में आया, Fe2O3 रस्ट बना और H2 गैस रिलीज हो गई. तो ये क्या हो रहा है? Fe से Fe2 बन रहा है. तो ऑक्सीडेशन तो हो रही है, ऑक्सीडाइज तो हो रहा है. तो ये ऑक्सीडेशन है. रैंसिडिटी भी ऑक्साइड बनता है. इसके रीजनिंग क्वेश्चन बहुत बनते हैं. पहला बनेगा कि बताओ कुरकुरे के पैकेट में नाइट्रोजन क्यों डाली गई होती है? ताकि नाइट्रोजन रिएक्ट ऐसी गैस है जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करती है, रोकती है, और इसकी वजह से कुरकुरे ऑक्सीडाइज नहीं होते, रैंसिड नहीं होते. ये क्वेश्चन बनता है. इस तरह के कई क्वेश्चन बनते हैं जिन पे हम डिटेल में बात कर सकते हैं बाद में. और क्रूजन के ऊपर मेनली आपको पता होना चाहिए कि वो ऑक्सीडाइड का और मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रूजन क्या क्या है. ऑयलिंग करना, ग्रीसिंग करना या गैल्वेनाइजेशन करना. वी विल डिस्कस इन डिटेल. सो mainly these are the 5 type of chemical reaction and these are the 2 processes which takes place just because of oxidation. So I
In the last, I just want to say that you go through the video 2 or 3 times for better understanding, and after that, from your book, you have to identify at least 10 combination reaction, 10 decomposition, all kind of reactions, 10 examples. Then it will be good practice for you. So do it, and bye bye, good evening. Bye.